The Print Off the Cuff. Presenting partner Kotak Private. Experience partner The Quorum. Beverage partner Art House Collective Glassware. Associate partner Teamology. Well, thank you all. We are so honored to have you as our guests, just as we are doubly honored to have Mr. Shinde as our chief guest. I know that it's his pulling power that all of you are here, but I particularly appreciate the fact that all of you and he also are here, even though it's the Ashtami. So Ashtami greetings to everybody and Shubho Vijaya in advance. And as you know, with political leaders, particularly those political leaders who are people persons, for them, festivals, weddings, wedding season, etc., are very busy because if you ask him if he has 100 wedding invitations and he doesn't go to all 100, somebody will always carry a sense of hurt. And if on the same day there are also 5 funerals, he'll go to all 5 also. That is the life of a public figure. It's a tough life, and he's a man of the people. So, Mr. Shinde, welcome to Off the Cuff. And with me is Mansi Phadke. Mansi is our deputy editor based in Mumbai. She's my old colleague for so long that I've known since she was a student. Let them know. So, I was the convocation speaker at, was it the Indian Institute of Journalism and New Media. So I was the convocation speaker that year, and there was a topper. And when I came home, I told my colleagues that there's a topper there. There are 2 toppers, joint toppers, and I said we should hire both of them. And for a moment, we lost both to Reuters, right? And then we were able to get back in the Express. And the other one became a priest in the course of time, or we would have got him also with us. So Mansi's been a colleague since then. Mansi, thank you very much. And Mansi will help us carry this conversation forward. So, Shinde ji, आपका बहुत स्वागत है. पहले ये बताइए कि आपका भी स्वागत है मुंबई में. आपके स्वागत के बिना तो आ नहीं सकता था मैं. तो मुझे लगता है कि आपकी खुशी हुई आपसे मिलकर और बात करके. धन्यवाद. तो मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि आपके अंदर बाला साहब जैसी थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर है. बाला साहब तो हमारे गॉडफादर है. तो एक बार मैंने बाला साहब के एक आर्टिकल लिखा, बाला साहब के बारे में थोड़ा कुछ रूड लिखा. तो मैंने उनको उसमें माफियोसो बोला. तो रात को 9, साढ़े 9 बजे मुझे फ़ोन आया, और फ़ोन पे आया कि वो बाला साहब बात करेंगे. तो हम दिल्ली कहीं खाना खाने गए हुए थे. तो वो बेसमेंट में रेस्टोरेंट था ओबराय में दिल्ली में. तो मैं ऊपर गया फ़ोन सिग्नल के लिए. तो मैंने कहा हाँ बाला साहब. तो मैंने कहा कि अब डांट पड़ेगी क्योंकि सुबह मिला है. तो बोले यू कॉल्ड मी ए माफियोसो. तो मैंने कहा वो तो इट्स इन प्रिंट. तो उसने कहा यू नो ऑफ ऑल द पीपल हु अब्यूज मी यू राइट द मोस्ट डिलाइटफुली. So it was very, very disarming. So उनका Bala साहब, then what are you doing for me if I write so delightfully? So he said, I will give you dinner. तो घर आओ. तो मैंने कहा ठीक है. तो he said, आप मैडम को भी लेके आओ. तो मैंने कहा ठीक है. Then he said, आप क्या खाते हैं? सब कुछ खाते हैं. फिर आप क्या पीते हैं? तो मैंने कहा वो तो बोले आप गुप्ता हो के सब कुछ खाते पीते हैं. तो मैंने कहा आप ठाकरे हो के जो मर्जी कर सकते हैं. तो उसके बाद we met. We had a wonderful dinner at his home. We came straight from the airport we went to Matushri, and since then had a very good relationship. Some of you might want to check out a 2-part walk the talk that we recorded in his study, and you see the picture there of the tiger and Michael Jackson, and Bala Sahab was in his elements. So never short of a joke and never short on sense of humor. So thank you very much. धन्यवाद. Good sense of humor. आप भी कुछ कहानी बताइए बाला साहब के बारे में, अपने संस्मरण कोई. आप तो मिले हो ना उनको, बातचीत भी हुई आप. हाँ. तो उनसे मिलने के बाद, बात करने के बाद आपको कैसा लगा? नहीं मैं तो उनको मैं आपका कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ. नहीं मैं इंटरव्यू देने को तैयार हूँ, लेकिन सब मेरे को सुनने नहीं आए, आपको सुनने आए हैं. नहीं, हमारे से ज़्यादा आप जैसे लोगों से बहुत मुलाकात उनकी, और जो बात करनी है हमसे जितना बात क्या है,
हम उनके सब शिष्य लोग हैं। हाँ बिल्कुल। और आप जैसे एक दूसरे के फ्रेंड जैसे बात करते हैं ना, तो नहीं नहीं, ये लेकिन फर्क होता है। सच्चाई है कि उनके अंदर बहुत ह्यूमिलिटी थी, तो वो लगता था कि, लेकिन बहुत ह्यूमिलिटी थी, और वो बहुत एक्सेसिबल भी थे। उनको फोन बहुत करो तो बहुत एकदम फोन करो तो जवाब आता था उनका। बिल्कुल। तो कोई एक कहानी आप भी बताइए उनके बारे में, सब शिष्य की तरह बताइए। क्या है, मुझे जब मैं शाखा प्रमुख था, शाखा प्रमुख से मेरी जर्नी शुरू हुई। कॉरपोरेटर हुआ, फिर एमएलए हुआ मैं, उसके बाद अपोजिशन लीडर भी बन गया मैं, उसके बाद मैं मिनिस्टर हुआ, एमएसआरडीसी मिनिस्टर। जो गडकरी साहब थे ना, वो मिनिस्ट्री मेरे पास थी। वो लगभग 6-6.5 हजार करोड़ के लोन डेफिसिट थी। घाटा था उसको उस टाइम। हाँ, घाटा था। तो घाटे वाला सौदा मुझे दे दिया। और आपको बताऊं, मैं जब देवेंद्र जी सीएम थे और मैं एमएसआरडीसी का मिनिस्टर था, नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, उसके बाद कई काम मैंने कहा मैं काम करने वाला हूँ, मुझे काम नहीं तो फिर मुझे मिनिस्टर बने रहना कोई मज़ा नहीं है। तो फिर जैसे फास्ट मुझे कुछ प्रोजेक्ट एमएसआरडीसी को दिए। अभी एमएसआरडीसी नंबर 1 महाराष्ट्र में काम कर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में। और बाला साहब की बात करेंगे तो ये सब उन्हीं के बदौलत जो है मुझे मौका मिला। हमारे आनंदी के सब थाना में, हमारे थाना के सब सर्वे सर्वा थे। बिल्कुल हाँ। तो थाने का काम हो तो आनंदी के साहब के पश्चात जब कोई झाड़ काट रहा है, कोई ऐसे पानी की लाइन फूटी हुई है, और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही चौकस थे बाला साहब। सुबह 8:30 बजे फ़ोन आता था उनका, एकनाथ कहाँ पे है? मैं जब लीडर ऑफ हाउस था कारपोरेशन में, तो बोले अभी बाला साहब का फ़ोन 8:30 बजे सुबह आया, तो देखो आप कैसे, सबकी तो धांधली हो जाती है। तो बोले क्या? बोले अरे उधर झाड़ कटाई हो रही है और तुम्हारे थाने में, और सर करके मैं वहाँ पहुँच जाता था। मतलब इतनी छोटी सी बात, लेकिन बहुत ही सजग थे वो एनवायरनमेंट के बारे में। या कोई रोड में गड्ढा है, कोई फुटपाथ पे कुछ प्रॉब्लम है, या पानी की लाइन फूटी है, तो इतना बारीक ध्यान उनका। इतने बड़े लीडर बाला साहब को तो आपको मालूम है, एक आवाज़ नहीं, उनकी आवाज़ ही काफ़ी थी ना। उनकी आवाज़ से तो पाकिस्तान भी डरता था। अभी मोदी जी की आवाज़ से डरता है। तो ऐसे बड़े व्यक्ति, और वो हमारे लीडर, हमारे प्रमुख, और फिर मुझे काम करने में भी ऐसा जो काम नहीं होने वाला है वो काम मुझे बताते थे। तो फिर ऐसे थाना में कुछ भी प्रॉब्लम है तो सुबह 8:30-9 बजे फ़ोन आता था। फिर वो काम पूरा, उनको भरोसा था कि एकनाथ शिंदे को फ़ोन करे तो कार्यक्रम पूरा हो जाता है, काम पूरा हो जाता है। ऐसे कई उनकी यादें हैं। कई हमारे एक मेयर की बात थी, थाना की मेयर। उस वक्त भी लगभग हमारा थाना का मेयर कांग्रेस का या एनसीपी, जब कांग्रेस एनसीपी हमारे अपोजिशन में थे ना, जी हाँ, जी हाँ। विपक्ष, लेकिन उस वक्त थाना का मेयर भी लगभग हमारा शिवसेना का नहीं होने वाला था। और उस वक्त जो जुगाड़ किया, जुगाड़ माने जुगाड़, हाँ बिल्कुल जुगाड़। जो इस देश में जुगाड़, आप कहीं भी जाएं सबको जुगाड़ पता है। हमारा देश ही जुगाड़ुओं का है, तो सब जानते हैं। जुगाड़, हाँ हाँ जुगाड़, जुगाड़, हाँ मतलब हाँ हाँ, तो आप दूसरा सोचेंगे। तो बहुत टफ टाइम था वो।
और मैं तो विपक्ष में था और मेयर बना दिया थाने का, शिवसेना का। उनका बहुत ये दिली इच्छा, थाने में बहुत, थाने के ऊपर बहुत प्रेम था उनका। थाने में पहले नगराध्यक्ष थाने ने शिवसेना को पहली सत्ता थाने ने दी, तब हम लोग कार्यकर्ता लोग थे। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु थे, बॉस थे। थाने का मेयर बनने के बाद शिवसेना का काफ़ी वो खुश हुए और बाला साहब की खुशी और एक कार्यकर्ता के उसको शाबाशी देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बाकी बहुत से किस्से हैं, ये सब मैं बता नहीं सकता हूँ। आपने सर लेकिन ये नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, समृद्धि एक्सप्रेसवे की बात की। इट्स अ ब्यूटीफुल रोड। इनफैक्ट हम अभी बहुत ही इजीली मराठवाड़ा जा सकते हैं हमारे रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स के लिए। पहले पूरा दिन निकल जाता था। पर मुझे याद है जब वो बन रहा था तभी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन था लैंड देने के लिए, और वो प्रोजेक्ट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ दोज की जहाँ पे सबसे जल्द गति से आपने लैंड एक्विजिशन कंप्लीट किया, वो प्रोटेस्ट पूरे मिटा के। एक तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, और अभी अगर हम देखने जाए तो और एक हाईवे है शक्तिपीठ, वो वापस यू कैन सी काइंड ऑफ अ रिपीट ऑफ व्हाट हैपेंड इन समृद्धि। शक्तिपीठ में अभी फिर रिकॉर्ड टाइम में समृद्धि हाईवे का काम हुआ, लैंड एक्विजिशन का, और उसको भी नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का मैंने दिया। और 700 किलोमीटर का रोड है। पहले 20 घंटे 22 घंटे लगते थे, 25 घंटे भी लगते थे। अभी रोड से नागपुर से मुंबई निकले, मुंबई से नागपुर जाना है, सिर्फ 7 से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। ट्रैवल टाइम इतना बच गया। अभी पहले तो कोई जाता नहीं था, अभी इंडस्ट्री जा रही वहाँ पर, और पूरी तरह गेम चेंजर रोड है। वहाँ पूरी तरह डेवलपमेंट हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई, ट्रैवल टाइम बच गया, फ्यूल ईंधन बच गया, सब कुछ हो गया। जब भी बहुत अपोज था उसको, सही कहा आपने, बहुत अपोज था, लेकिन फील्ड पर उतर के देवेंद्र जी ने कहा होगा कि नहीं, मैं बोला होगा, बिल्कुल होगा। और फील्ड पे उतर पे लोगों को समझाया, उनको बहुत मुआवजा अच्छा दिया, लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड टाइम में हो गया। और पूरी तरह मैं आपको बताऊंगा उसको, कई फॉरेस्ट एरिया में पूरी तरह जो हमारे वाइल्ड एनिमल है उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया है, वैसे ही उनको फील आना चाहिए। उसके लिए हमने 300 अंडरपास और ओवरपास किए, 300। और आज वो पूरी तरह प्रो एनवायरनमेंट रोड है। वहाँ सोलर एनर्जी भी सोलर अभी एनर्जी है किसानों के लिए। और उस रोड से पहले किसान आज निकले सुबह हमारा अपना ट्रक में फसल लेकर, तो तीसरे दिन पहुंचता था मुंबई में। आज सुबह निकला तो शाम को पहुंचता है। इतना तेजी से फूड प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है, लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, वहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्री जा रही है वहाँ पर, क्योंकि कनेक्टिविटी मस्ट है। अभी वहाँ से JNPT आना है तो सिर्फ 7 से 8 घंटे में हम पहुँचते हैं, 9 घंटे में पहुँचते हैं। ये गेम चेंजर है। शक्तिपीठ की बात की है, शक्तिपीठ भी पूरा होगा। जहाँ देखिए हम लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं ये जनता के लिए करते हैं, जनता का विरोध नहीं, जनता का कंसेंट लेके करते हैं, उनको समझाते हैं, कन्विंस करते हैं इसका फायदा क्या है। और इसलिए शक्तिपीठ में भी कई लोगों ने कंसेंट दिए हैं, थोड़े कुछ बचे हैं, उनको कन्विंस करेंगे, उनका फायदा क्या वो बताएंगे। ये मराठवाड़ा से होते हुए जाता है और लगभग 5 जिलों को फायदा होगा। मराठवाड़ा सूखा पीड़ित इलाका है, वहाँ ऐसे गेम चेंजर रोड बनेंगे तो क्या है, जिस कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोड इम्पोर्टेंट है। और ये हम चाहते हैं कि MSRDC, MMRDA सब लोग काम कर रहे हैं। और लगभग 5000 करोड़ का एक्सेस कंट्रोल रोड, जैसे मुंबई पुणे पहला देश का एक्सेस कंट्रोल रोड था, गडकरी साहब ने बनाया। बाला साहब ने कहा था उनको, अरे 7-8 घंटे लगते हैं मुंबई से पुणे जाने के लिए, कैसे चलेगा। तो अभी वो 2.5-3 घंटे में मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई डेली अप डाउन करते लोग। अभी वहाँ पर एक रोड के वजह से वहाँ IT पार्क हो गया, मोबाइल इंडस्ट्री आ गई, रियल इस्टेट बूम हुआ, सब हो गया।
और सर्विस इंडस्ट्री आ गई, पूरा गेम चेंज हो गया। आज हम वहाँ पर गुप्ता जी, वहाँ पर एक दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल बना रहे, मुंबई पूना में। खालापुर से वो सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट निकलता, वहाँ पर आधा घंटा पहले मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई पहुँच जाएंगे, पूरा घाट सेक्शन अवॉइड हो जाएगा। तो एक रोड कितना गेम चेंजर हो सकता है, ये नागपुर मुंबई ने भी दिखाया है, पुणे मुंबई ने दिखाया है, शक्तिपीठ दिखाएगा, और पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल का हम ग्रिड करना चाहते हैं। कोई भी कोने से कोई भी कोने में जाओ, ईस्ट से वेस्ट जाओ, नॉर्थ से साउथ जाओ, सिर्फ 7 से 8 घंटे में पहुंचना चाहिए। कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो शक्तिपीठ जरूर करेंगे। Shaktipeeth is basically a road, expressway rather. Road is, it's not the proper term for it. Being planned from Nagpur to Goa, it's going to be even longer than the Mumbai-Nagpur expressway. So that's the idea. There's और एक project है जिसके बारे में I'm sure सारे हमारी सारी audience यहाँ पे जानना चाहेगी. But when we planned the off the cuff today for 30th September, just a couple of days after we got Shinde sir's confirmation, I heard that the Prime Minister Modi, was going to be in town to inaugurate the Navi Mumbai airport. And my heart literally skipped a beat. I started thinking about whether our program will happen or not. Fortunately for us, not very fortunately for everybody else, that visit was cancelled and the inauguration was pushed forward. अब क्या status है नवी मुंबई एयरपोर्ट का? 8 तारीख। 8 तारीख को। अच्छा, पहली फ्लाइट कब निकलेगी? 8 तारीख को शुरू हो जाएगी। और ये मुंबई नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो है, मुंबई का पूरा लोड कम हो जाएगा। अटल सेतु वो बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में किया, और वहाँ पर जो लगभग मुंबई से नवी मुंबई एयरपोर्ट जो बनेगा, वहाँ पर ये अटल सेतु जो है, अटल सेतु पहले 1.5 से 2 घंटे लगते थे, मुंबई ठाणे नवी मुंबई होकर अभी अटल सेतु से कई लोग गए होंगे ना, अटल सेतु सिर्फ 20-25 मिनट में मुंबई पहुंच जाते लोग। अभी वहाँ एयरपोर्ट तो अभी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वहाँ एजू सिटी बना रहे, मेडी सिटी बना रहे, एरो सिटी बना रहे, स्पोर्ट सिटी बना रहे, डेटा पार्क होगा। लगभग 370 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और MMRDA उसका प्लानिंग अथॉरिटी है। ये तीसरी मुंबई हो जाएगी, और एयरपोर्ट के वजह से सभी लोगों को फायदा है, उसको जल्दी शुरू करेंगे हम। अब ये बताएं कि कई प्रोजेक्ट, ये 22 किलोमीटर का सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, जी हाँ, अटल सेतु। ये बताएं कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने हैं मुंबई में, मुंबई के चारों तरफ, और महाराष्ट्र में भी, अब सारे देश में भी बनते हैं। कोस्टल रोड भी बन गया, अभी वो बन गया, लेकिन हर मुंबई कोस्टल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इतना विरोध क्यों होता है? लोग इससे जेन्युइनली घबराते क्यों हैं? इससे पॉलिटिकल टेंशन क्यों होती है? क्यों घबराने का क्यों? अभी जब भी मैं CM बन गया, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, तो कई प्रोजेक्ट को रोका था उन्होंने, स्टे दिया था, मेट्रो में स्टे दिया था, कारशेड में स्टे दिया था। जैसे हम आ गए, सब स्टे हटा दिए। मेट्रो 337 किलोमीटर जो है, उसका काम शुरू हो गया। कई मेट्रो का तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया है, और फेज में हम जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि ये जो मेट्रो है, मेट्रो के जो स्टे हुआ था, उसको स्टे को हटाया। अभी हमारी गवर्नमेंट स्टे वाली नहीं है, स्थगिति वाली नहीं, प्रगति वाली है, और आगे बढ़ना है। ये मेट्रो एंड टू एंड कनेक्टिविटी होगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी, तो मैं कहूँगा कि मुंबई की ट्रैफिक डिकंजेस्ट हो जाएगी। तो क्यों इसको विरोध करना? इसको विरोध करने का कारण क्या है? क्योंकि हम मुंबई वासियों के लिए कर रहे हैं। मुंबई में आज कोस्टल रोड अगर पूरा कंप्लीट हो गया, जो 45 मिनट्स 50 मिनट्स लगते थे, अभी 10-15 मिनट में कोस्टल रोड से मंत्रालय पहुंच जाते लोग। तो हर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट जो है, मैं 2.5 साल काम किया, अभी देवेंद्र जी CM काम कर रहे, हमारी टीम काम कर रही है, और पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रहना हमारी गवर्नमेंट का काम है। और इसलिए
ये जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट है इसको हम तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ा रहे। तो इसमें मैं आपको यही एक बात बताऊंगा मैं कि ये जो अटल सेतु हुआ, तभी कई एनवायरनमेंट के लोगों ने, एनजीओ ने कहा कि ये फ्लेमिंगो भाग जाएंगे यहाँ से, जो लेफ्ट में दिखते हैं ना, अभी भी दिखते हैं, अब ज़्यादा हो गए पहले हाँ। से। अब वही तो बता रहा हूँ। तो मैंने वो चैलेंज ले लिया, मैंने कहा कि फ्लेमिंगो भागेंगे नहीं, फ्लेमिंगो यही रहेंगे, उल्टे बढ़ेंगे। तो हमने वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया, नॉइज बैरियर काम के वक्त लगाए, फ्लेमिंगो गए नहीं। जिसने कंप्लेंट की थी उन्होंने ही उनके रिपोर्ट में कहा कि फ्लेमिंगो बढ़ गए यहाँ पर। तो उसमें थोड़ी सी एक इंट्रिकेट चीज़ ये है कि फ्लेमिंगो वहाँ जाते भी इसलिए हैं, ब्रीड करते हैं, क्योंकि जो बार्क से पानी आता है वो थोड़ा वार्म होता है, तो उनको थोड़ा वार्म पानी पसंद आता है। तो कई बार कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे, हर प्रोजेक्ट से नुकसान नहीं होता, एवरी प्रोजेक्ट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, समटाइम्स देयर आर बेनिफिट्स आल्सो। अच्छा हुआ आपने उसका स्टडी किया है। तब ये सब मैंने ये एज एडिटर डील किया, क्योंकि प्रोटेस्ट होते थे, आप सही बोल रहे हैं, लोग लेके आते थे कि अब इसको रुकवाओ। सब लोग आपके जैसे सही नहीं बोलते, आप सही बोल रहे हैं। कभी कभी सही हो सच जाता बोलते है, कभी कभी सही। मानसी सर, so basically for all of us, the way we look at it is, एकनाथ शिंदे सर पहले चीफ मिनिस्टर थे, अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, सीएम एंड नाउ डीसीएम. The way he always talks about it is, he was common man, CM first. Now he is DCM, dedicated to common man. तो क्या बदला है exactly? है कुछ बदला है? कुछ बदला नहीं है, काम वही चालू है। सीएम था तो लोग कहते थे मुझे चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूँ सीएम मीन्स कॉमन मैन, क्या प्रॉब्लम है? कॉमन मैन के लिए तो काम कर रहे हैं हम हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं डीसीएम हूँ तो अब मैं कहता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन, क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या नाम से कुछ चेंज थोड़ी होता है क्या? हमें काम करना है, और काम देखिए राज्य को आगे बढ़ाना है। मोदी जी जैसे देश को आगे बढ़ा रहे और हम राज्य को आगे बढ़ा रहे। अगर आज इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं जब चीफ मिनिस्टर बना उसके बाद 1 महीने के बाद दावोस गया था, मुझे लगा कोई एमओयू करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस वक्त भी 7 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए, 7 लाख। खाली उन्होंने मुझे पूछा मोदी जी के साथ कैसे, बोले मोदी जी और हमारी एक ही, हम मोदी जी के आदमी लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भरोसा होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट है। और आज भी मैं ये कहूँगा, जब देवेंद्र जी पिछली बार दावोस गए लगभग 14 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। सिर्फ पेपर पे नहीं है, उसका कन्वर्जन रेट जो है 70 to 80% है इंडस्ट्री का। आज हमने उनको लैंड दे दी, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड मैन पावर है, कनेक्टिविटी है, तो लोग आ रहे हैं और वहाँ हमारी इंडस्ट्री यहाँ हो रही है। और किसी को भी, कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री डालना चाहे तो उसको गवर्नमेंट की तरफ, हमारा गवर्नमेंट पूरी तरह एकदम पॉजिटिव और प्रैक्टिकल है, और इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना, उनको फैसिलिटी देना, ये हमारा काम है। इसलिए मैं कहूँगा कि इससे इंडस्ट्री आई तो रोजगार बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसलिए जीडीपी में हम नंबर 1 है, स्टार्टअप में हम नंबर 1 है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम नंबर 1 है, तो बढ़ रहे हैं आगे। बिल्कुल। Just because not all of you have been to an off the cuff before, this is not a show where we take up all the time and finally say 10 minutes for questions. Please raise your hands at any point of time and I will come to you, and please join in the conversation. And when you do, mention your name. If you want to say what you do, that is so that we can record it, and ask your question. You can ask your question in any language. If it's English, if need be, I will translate it. Otherwise, we'll figure out. So please raise your hand anytime. I'm always keeping an eye out for raised hands. Mansi? सर, महायुति को इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन, मतलब एक रिकॉर्ड मार्जिन से महायुति केम बैक टू पावर, आपके लीडरशिप में पूरा इलेक्शन लड़ा था।
आफ्टर गेटिंग सच स्ट्रॉन्ग नंबर्स, वर यू डिसअपॉइंटेड कि आपको चीफ मिनिस्टरशिप तभी नहीं ऑफर की? देखिए, हमारी कुर्सी की लड़ाई नहीं है, हमारा एजेंडा कुर्सी का नहीं है, हमें डेवलपमेंट करना है, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है। और जिन्होंने हमें कुर्सी पर बिठाया है उनका प्रॉब्लम क्या है वो सॉल्व करना, ये हमारा एजेंडा है। तो ये लाडली बहन योजना स्कीम, कई वेलफेयर स्कीम हमने शुरू की और उससे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई। तो आज महाराष्ट्र में जहाँ जाता हूँ हमारी लाडली बहना बड़े हर्ष के साथ स्वागत के लिए खड़ी रहती है और मुझे एक नई आइडेंटिटी मिली है, लाडले बहनों का भाई। ये सबसे बड़ा पद है, सभी पदों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, क्योंकि आखिर हम काम किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं, इस महाराष्ट्र राज्य के लिए कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। तो सीएम से डीसीएम हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जब सीएम था तो देवेंद्र जी भी डीसीएम थे। आपके कैसे रिलेशन है देवेंद्र जी से? बिकॉज वी कीप हियरिंग स्टोरीज अबाउट कि एक कॉन्ट्रैक्ट था आपके अंडर अप्रूव किया, वो स्क्रैप किया गया, फिर मतलब देयर आर स्टोरीज अबाउट रिफ्ट्स दैट कीप कमिंग अप। देखिए, बहुत अच्छे संबंध है हमारे। 2014 में वो सीएम थे तो मैं मिनिस्टर था उनकी कैबिनेट में, और उनको पता है कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ और काम करने वाला हूँ, और वो भी काम करते हैं। वो उसके बाद 2022 में मैं सीएम था, वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन हमारा टीम बनकर हमने काम किया है। आज भी हम टीम बनकर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जो बातें हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है और हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, हमारी आइडियोलॉजी सेम है और हमारा एक ही काम है कि इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना, डेवलपमेंट यही हमारा एजेंडा है। इसलिए ये सब बातें जो है उसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, और मोदी जी हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। अभी जीएसटी का भी मामला, जीएसटी का स्लैब 2 कम हो गया, इससे भी स्टेट के लिए फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। आप पूछने वाले थे, पहले ही मैं बोल दिया। और जैसे बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनका जैसे सप्लाई बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ है, एक इकोसिस्टम है। और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, जीएसटी की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आपको कंपटीशन लगता है बाकी स्टेट्स के साथ, जैसे गुजरात के साथ है, वहाँ गिफ्ट सिटी बन रहा है, वो तो सीधा मुंबई के लिए कंपटीशन है, और तमिलनाडु, तेलंगाना, अब आंध्रा भी कोस्टल स्टेट है, आगे चलेगा। तो कितना कंपटीशन आपको फील होता है, और आपको लगता है कि महाराष्ट्र पीछे तो नहीं रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र को लोग पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है, मैं कहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरे देश में, आज लगभग सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में। अभी आप मेट्रो का ही देखेंगे तो मेट्रो का 1.5 लाख करोड़ का काम शुरू है, लगभग पूरा होते होते 3 लाख करोड़ पार कर जाएगा। एमएसआरडीसी काम कर रही है, रोड बना रही है, एमएमआरडीए काम कर रही है, सिडको काम कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्री आ रही है। तो आज भी हम जीसीसी का एक कैबिनेट में प्रपोजल सैंक्शन किया, तो उसमें भी लोग आएंगे, और यहाँ के जो स्किल पीपल है जो हमारे, वो बाहर नहीं जाएंगे, यही काम करेंगे। क्वेश्चन देयर। हाय, माय नेम इज़ राहुल जगतियानी। सर, आपके लिए एक सवाल है। जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो भाजपा और शिवसेना के बीच तो काफ़ी समय से संबंध रहे हैं, और अब आपकी सेना के साथ संबंध है। तो जब तक आप चीफ मिनिस्टर थे और देवेंद्र जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, तब ठीक था। अब रिसेंटली एक तीसरे जेंटलमैन आ गए हैं, मिस्टर अजीत पवार। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, 2 इज़ अ कंपनी, 3 इज़ अ क्राउड।
So how are you managing, the power dynamics in this kind of situation? देखिए क्या है, हम काम करने वाले लोग हैं। हमारा एजेंडा जो है डेवलपमेंट का है, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि अभी देवेंद्र जी और हम तो पहले से काम कर रहे थे साथ में। अभी महाविकास आघाड़ी एमवीए जब था तब अजीत दादा भी वहाँ पर थे, और अजीत दादा पवार वो भी जो है काम करने वाले हैं। तो हमारा एजेंडा क्या है, पॉजिटिव है और डेवलपमेंट का है। तो बाकी दूसरा एजेंडा हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैनेज करना, कोई अगर एजेंडा अलग अलग लेके चलेंगे लोग तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ पर हम टीम बनकर काम कर रहे हैं। इसका असर आपके पार्टी वर्कर्स पे कैसा पड़ा है? क्योंकि इलेक्शन टाइम पे ये तो एनसीपी के अगेंस्ट तो ये तो लड़ते रहेंगे पार्टी वर्कर्स ग्रास रूट लेवल पर अब उनको थोड़ा बहुत मिलजुल के चलना है। मैंने पहले कहा ना कि जोड़कर चलते हैं, हम तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। और इसलिए सब लोगों को साथ में लेकर चलना, और हमारा एजेंडा बिल्कुल महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, और यही हम चाहते कि महाराष्ट्र जैसे हमारे देश का ग्रोथ इंजन है, इसको और आगे बढ़ाना है। इसलिए दिक्कत नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नमस्ते जी। नमस्कार। It has come in the paper that your government is going to spend 3,750 crores for constructing a Vidhi Nagari at Bandra. Has your government not considered other options where this much money is not required? And secondly, what will happen to the present High Court building, because there is no mention of it. 3,700? 3,750 crores. You are going to build a Vidhi Nagari, not only the High Court, but Vidhi Nagari at Bandra. Yeah. There are other options available, whereby you will not even have to spend. कोर्ट बन रहा है ना वहाँ पर? Yeah. कोर्ट हाँ, कोर्ट बन रहा है, या कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है। हाँ, तो वहाँ पर बांद्रा में कर रहे हैं। वहाँ पे कोर्ट बन रहा है, लेकिन दूसरे जो ऑप्शंस है, जो अगर हम आपके देते हैं तो उससे 10% में वो सेम चीज होगा जो आप वहाँ पूरा विधि नगरी उधर शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो आप कुछ कंसिडर करेंगे उसके ऊपर? हाई कोर्ट का मामला है और आप सीनियर काउंसिल है ना, हाई कोर्ट का मामला है ना, वो उधर भूमि पूजन हुआ है। हाई कोर्ट का मामला है, लेकिन पैसे तो आप गवर्नमेंट से जा रहे हैं, पब्लिक का नहीं जा रहा है। तो अगर कोई स्कीम दिखावे कि जिससे नहीं, क्या है, वहां पर एक कैंपस बड़ा बनेगा। अभी जो हाई कोर्ट है वो तो हेरिटेज है, वहाँ काफ़ी दिक्कत है, कोर्ट रूम कम है। यहाँ पर सब पूरा हो जाएगा और पूरी तरह एक बड़े कैंपस में ये सब शुरू होगा। ये आखिर लोगों के लिए फायदा है ना। कोर्ट जो लोगों के, मेरे हिसाब से लोगों के लिए फायदा नहीं है, क्योंकि अगर दूसरी जो ऑप्शंस है, अभी आपको शायद पता होगा कि सिटी सिविल कोर्ट 3 जगह पे है आज बंबई में, कोर्ट में है, माझगांव में है और दिंडोशी में है। उसको एक करके आप एक 4-5 एकड़ जमीन में बांद्रा में शिफ्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी सिविल कोर्ट का पूरा बिल्डिंग हाई कोर्ट में ले लो। आज दोनों के बीच में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के 1-2 डिपार्टमेंट छोड़ के पूरे कलीना में गए हुए, वो आप ले लो। इसके बारे में सोच सकते हैं हम, लेकिन जो अभी हम काम शुरू कर चुके हैं, काम शुरू है नहीं अभी तक, तो ड्राइंग बोर्ड पर है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। आपका सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, सवाल आपको इसलिए पूछा कि गवर्नमेंट पैसे गवर्नमेंट से आ रहे हैं और पब्लिक मनी जा रही है। I think what he is saying is that because the High Court is involved, and High Court, there is always an inter-institution balance. So if the High Court wants it done, then it will be done. That's what he means. क्या है, काफी हम लोग आगे नहीं चले गए उस मामले में, तो निश्चित रूप से। और आपके जो सजेशन है, कुछ छोटे छोटे कोर्ट को हम इकट्ठा लाएंगे तो जरूर उस पर हम सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सोच सकते हैं। नमस्कार जी। पूना में जो पुरंदर एयरपोर्ट के हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, उसका क्या कुछ आज अभी कुछ असलियत भी होगी कि हमारे लाइफ टाइम में होगी कि हमारे लाइफ टाइम के बाद? नहीं, आपके सामने होगी। लैंड एक्विजिशन लगभग 25 साल से हम सुन रहे हैं। लैंड एक्विजिशन लगभग कंप्लीट हो गई है।
लगभग 95%। अभी उसको बहुत तेज आगे बढ़ेंगे और उसका काम शुरू हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था, वो लगभग कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल होगा। ये पुणे के जाने माने और साथ के साथ जो आप एयरपोर्ट तो बनाएंगे, पर उसकी जो मोबिलिटी है वहाँ पहुँचने के लिए रोड रेल वगैरह जो भी है वो भी साथ के साथ करनी एयरपोर्ट चाहिए, पर वो उसके बारे में कुछ सुनाई पैरेलली नहीं दे रहा। बनाएंगे, साइमल्टेनियसली सब काम शुरू हो जाएगा। आप यकीन रखो। अपना नाम भी बताएं ना। हम और मुकेश मल्होत्रा फ्रॉम अभी मैं जो बता रहा हूँ, हाँ जी। हम काम शुरू होने के बाद फिर आप मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मुकेश जी बताने रहे क्या करते हैं यहाँ पे। मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा होगा जिसने सुबह कभी कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाए होंगे, जो कि एक ब्रांड के होंगे वेकफील्ड। तो वो ये इतना लंबा बिजनेस इतने जनरेशंस का ये संभालते हैं, ये और इनके ब्रदर। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर भी हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन स्पेशली पुणे से आए हैं। अच्छा, ओके। मैं प्रदीप दीक्षित बोलता हूँ। मेरी एक खुद की इंडस्ट्री है नवी मुंबई में। अब महाराष्ट्र में इंडस्ट्री का एक दिक्कत आ रही है, स्टार्टअप को MIDC में प्लॉट मिल नहीं सकता, ऐसा कुछ रूल हो गया है। जिसकी अभी खुद की इंडस्ट्री है उसको एडिशनल जगह मिल सकती है, लेकिन स्टार्टअप को नहीं मिल सकती है। तो ये MIDC थोड़ा सा और लैंड एक्वायर करे तो ही महाराष्ट्र में नई पीढ़ी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लेके ऊपर आ सकती है। नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में बिल्कुल। अगर ऐसा स्टार्टअप के लिए ज़मीन नहीं दे रहे MIDC, तो मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर से बात करूंगा और स्टार्टअप के लिए जगह देने के लिए मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं, मनजोत सिंह चतरथ, CMD ऑफ क्यूमैक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। उनका यही सवाल है कि MSCs 75% एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो आप MIDC लैंड स्कीम को रिवैम्प कर रहे हैं जिससे बेटर एलोकेशन हो और यूटिलाइजेशन कंपनीज के लिए हो जिनको जेन्युइनली मदद चाहिए। तो आप MIDC लैंड एलोकेशन स्कीम को कोई इम्प्रूव कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस भी शुरू किया है और लगभग इसमें मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर से बिल्कुल बात करूंगा। और वो मिनिस्ट्री भी शिवसेना के पास है, तो निश्चित रूप से हमको जो भी कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं उसमें, तो बिल्कुल शेखर जी हम उसमें ज़रूर लाएंगे। और इंडस्ट्री के लिए बढ़ावा देने जो है, हम कहते हैं इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बनाना है, तो बिल्कुल ये सब करना ही पड़ेगा हमको और करेंगे ज़रूर, बिल्कुल करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल। अपना नाम बताओ। Let me introduce her. She's Chitra. She's an alumni of the Print School of Journalism, and we work together. She teaches physics. And बोलिए। सर, जब भी एक पॉलिटिशियन को पब्लिक प्लेटफॉर्म में देखते हैं, या तो उनको खुद का काम बड़ा चढ़ाकर बोलना पड़ता है, दूसरा किसी न किसी ओपोनेंट के बारे में कुछ न कुछ गलत बोलना पड़ता है। तो एज अ कॉमन मैन, आपका जो ये ट्रांजिशन रहा फ्रॉम अ कॉमन मैन टू अ पॉलिटिशियन, इसमें आपको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े और आज आपको कैसा लगता है इस मकाम पे पहुंचने पर? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, जब मैं कारपोरेटर था, काउंसिलर, उसके बाद मैंने पहले कहा था मेरी जर्नी, MLA बन गया, मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर भी बन गया, अपोजिशन लीडर भी बन गया। तो सब तजुर्बे जो है, एक्सपीरियंस मेरे पास है, अपोजिशन लीडर के भी है और रूलिंग पार्टी के भी है। तो पहली बात है, ये बात है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पहले बताता हूँ। और मैं कितने, आपने भी देखा होगा, जब मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तभी कितने शुरुआत से ही कई आरोप, कई ब्लेम गेम हो गए, सरकार गिर जाएगी, चीफ मिनिस्टरशिप जाएगी, लेकिन मैंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा आप एलिगेशन लगाओ, मैं एलिगेशन का जवाब एलिगेशन से नहीं दूंगा, मैं काम से दूंगा, मैं काम करके दूंगा। और काम करते 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 आपने देखा 2.5 साल हो गए, सरकार बिल्कुल मजबूती से खड़ी रही
और काम करने की वजह से अभी इस बार महाराष्ट्र की जनता ने, आप सभी लोगों ने मिलकर 232 सीट्स एमएलए महायुति के झोली में डाल दी, महायुति को जिताया। ये अभी तक के रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में कभी भी 232 सीट नहीं आई थी। मैंने सिर्फ एक ही देखा, जो चाहे जो कोई बोलता है उसको बोलने दो, मैं मेरा ध्यान हमारे काम के ऊपर रखा। और काम बोलता है, काम ही बोलता है। जो काम आज किए हैं, मुंबई कोस्टल रोड देखिए, अटल सेतु देखिए, मेट्रो देखिए, काम तो सामने है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब मैंने डीप क्लीन ड्राइव शुरू किया। डीप क्लीन ड्राइव क्या है? एक सीधा काम है। एक जगह की मैन पावर अगर काम करती है कारपोरेशन की, तो 4 जगह की मैन पावर को एक जगह लाओ, पूरे रोड साफ कर दो, पूरे तरह नालियाँ ये वो सब एक साथ साफ करो। और एक साथ जब जहाँ 100 लोग काम करते हैं, 500 लोग काम करेगा तो उसका इम्पैक्ट दिखता है। और मैं खुद रास्ते पे उतरकर डीप क्लीन ड्राइव में, कभी आपने देखा रोड को धोते हुए, वॉश करते हुए, पीने के पानी से नहीं, रिसाइकल वाटर से, लेकिन वो भी हमने किया। इसलिए लोगों ने देखा कि ये काम करने वाला बंदा है। ये ब्लेम जो करता है करने दो, आज भी करते हैं, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं बहुत ही हमारे काम से, पूरा मेरा काम डेडिकेशन और डिवोशन से होता है सर। और इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं कुछ समझा ही नहीं कुछ कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ या मिनिस्टर हूँ। मैं खुद को जैसे लोगों के जैसा ही मैं समझता था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, कोई डिफिकल्टी भी नहीं आई। और एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था मुंबई में, कंक्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स। तो अभी क्या हो रहा है कि ऑल ऑफ मुंबई इज डग अप, क्योंकि सारे रोड्स पे काम शुरू है। इट्स इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ मीम्स आल्सो ऑन सोशल मीडिया। ये कब खत्म होगा? देखिए, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं म्यूनसिपल कमिश्नर चहल थे, उनको बुलाया। मैंने कहा ये रोड वाला मामला कभी सुधरेगा? ये गड्ढे से भरा हुआ रोड, लोगों को तकलीफ होती है, एक्सीडेंट होते हैं, रोड पर गड्ढों पे गाने बनते हैं, ये कभी बंद हो गए। तो मैंने कहा इसको हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहता हूँ मैं, इसको हम पूरे रोड का कंक्रीटाइजेशन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, हर साल हम 50 किलोमीटर कंक्रीट के रोड करते। मैं बोला कोई नियम है क्या, कोई कानून बना के रखा है कि 50 किलोमीटर करना? मैंने कहा 100% 2 फेज में पूरे मुंबई के रोड कंक्रीट के करने हैं मुझे। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। बोले पैसे की प्रॉब्लम है? बोले नहीं। तो शुरू हो जाओ। तो पहले फेज में टोटल 701 किलोमीटर के रोड मुंबई के कंक्रीटाइज हम कर रहे हैं 2 फेज में। अगले 1.5 साल के अंदर आपको पूरी मुंबई पॉटहोल फ्री मिलेगी, एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। शिंदे साहब बोलिए। आपको मैंने बहुत करीब से देखा है और आपने जितना भी रोल निभाया है, आप में ह्यूमर बहुत है, इतना मैंने देखा है। असेंबली में एकदम टफ में टफ टाइम भी हो तो आप उसको ह्यूमरसली हैंडल कर लेते हो, ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी है। डेवलपमेंट बम्बई का बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है बम्बई में वापस जीवन जीने लायक बना है। नहीं तो बम्बई ऐसा लग रहा था एकदम डिकेइंग सिटी है और एवरीथिंग इज ओवर इन बॉम्बे। अभी जैसे मैं मरीन ड्राइव रहता हूँ, वहाँ से कोस्टर रोड से आया हूँ, एयरपोर्ट जाना है तो एक भी सिग्नल नहीं है। मरीन ड्राइव से सहार एयरपोर्ट के बीच में एक भी सिग्नल नहीं है। तो ये सब क्रेडिट आपको और आपकी गवर्नमेंट को है। 50,000 70,000 करोड़ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है। दूसरी बात, आपने एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा काम किया, ऑडियंस को पता नहीं है। एक बाम्बू प्लांटेशन का ड्राइव जो इनके चीफ मिनिस्टरशिप में जो बनाया गया है, महाराष्ट्र एक ही स्टेट है पूरे वर्ल्ड में जिसने 10 लाख हेक्टेयर में बाम्बू प्लांटेशन का गवर्नमेंट डिसीजन लिया है इनके चीफ मिनिस्टरशिप में। पाशा पटेल। यस, और पाशा पटेल जी हमारे साथ में, जो हमारे चेयरमैन है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो एक बाम्बू ट्री 320 किलो ऑक्सीजन पर ईयर देता है और एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है 280 किलो ऑक्सीजन। सो 1 बाम्बू ट्री इज लाइक अ बैंक फॉर 1 ह्यूमन बीइंग।
और 10 लाख हेक्टेयर में यदि बाम्बू महाराष्ट्र में प्लांट होगा तो महाराष्ट्र एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेट वर्ल्ड में पहला स्टेट बनेगा। ये आपने किया है और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक लास्ट बात आपसे सर है, ये सब डेवलपमेंट सब अच्छा है, लेकिन हमें बम्बई में फुटपाथ नहीं है। चलने के लिए फुटपाथ चाहिए, अभी आप वॉकिंग के लिए। अभी आप कोस्टल रोड से चलेगा? कोस्टल रोड पे फुटपाथ है, लेकिन और कहीं फुटपाथ नहीं है। कितना बड़ा है? देखिए वो बहुत साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया है, फुटपाथ भी बनाया आपने, लेकिन एग्जिस्टिंग रोड्स में वॉकिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आज बच्चे घर से स्कूल वॉक करके नहीं जा सकते। आज मुझे ऑफिस से घर से ऑफिस वॉक करके जाना है, 10-15 मिनट का वॉक है, मेरी हेल्थ भी सुधरेगी, मैं वॉक करके जाऊंगा, मैं गाड़ी यूज नहीं करूंगा तो कार्बन एमिशन भी कम होगा, बहुत सारे फायदे हैं। आई थिंक बिल्कुल फुटपाथ जरूर ध्यान दीजिए। बताऊंगा आपने बाम्बू प्लांटेशन के लिए धन्यवाद आपको, आपने बुला करके, क्योंकि आज बाम्बू जो है ऑक्सीजन पार्क बन गया है और उसको मैं सीएम था तब उसको प्रमोट किया है और बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में बाम्बू प्लांटेशन का काम हो रहा है और बाम्बू बहुत उसके बाय प्रोडक्ट बहुत है। कई एयरपोर्ट भी बाम्बू से बने हैं, बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज बहुत से चीज़ें बाम्बू से बनती है, इथेनॉल में यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये हमें एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसलिए उस पर मैंने फोकस किया। और मोदी जी ने भी कहा कि बाम्बू ये बांस नहीं, बाम्बू ये घास है, तो इसलिए उसका फ़ायदा हो गया। सब जो डिफ़िकल्टीज थी वो निकल गई, इसलिए हमें आसान हो गया। फुटपाथ की बात जो आपने की है, सही बात की है। और मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर को मैंने कहा है कि जितने भी फुटपाथ है वो लोगों को चलने के लिए है, वो चलने के लिए रहने चाहिए, क्योंकि उसमें और कोई एनक्रोचमेंट है क्या है, वो क्या है, उसको अलग किधर तो जगह दे दो, लेकिन फुटपाथ चलने के लिए फ्री होने चाहिए और उसको फुटपाथ अच्छे ढंग से होने चाहिए। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि एक फुटपाथ का अलग से एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ले लूंगा मैं और बीएमसी के माध्यम से और उस पर पूरा फोकस करूंगा। और एक प्रोजेक्ट है जिसको लेकर बहुत संभ्रम है लोगों में, महालक्ष्मी रेस कोर्स में, व्हेन द गवर्नमेंट सेड दैट इट विल टेक ओवर सम पार्ट ऑफ द लैंड and the opposition has been saying that this government wants to destroy green spaces, open spaces. क्या प्लान क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली? देखिए, ये जो लोग कहते हैं, वो लोग नहीं, कोई अपोनेंट कहते हैं या विपक्ष के लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ बनने वाला है या कुछ बिल्डिंग बनेगी या कमर्शियल कुछ होगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि महालक्ष्मी रेस कोर्स, यहाँ पर जितनी ज़मीन है उसमें से 125 एकड़ ज़मीन हमने उनसे मांगी। उनको कहा कि 125 एकड़ ज़मीन आप सेंट्रल पार्क के लिए दे दो। ये मुंबई में कुछ ना कुछ खुली जगह तो चाहिए लोगों के लिए, और 125 एकड़ ज़मीन उन्होंने हमें बीएमसी को हैंडओवर कर दी है। और जो कोस्टल रोड, उसकी लगभग 170 एकड़ की ज़मीन जो है, जो लेंथ में है, विड्थ में है, वो 170 और 125 लगभग 300 एकड़ का वर्ल्ड क्लास सेंट्रल पार्क यहाँ मुंबई में बनेगा। सेंट्रल पार्क, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, पूरी तरह ये बहुत बड़ा ऑक्सीजन पार्क हम बनाना चाहते हैं। और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, फिर भी हम मिलेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बहुत बड़ा गार्डन होगा और लोगों के लिए हम अंडरपास से उसको महालक्ष्मी रेसकोर्स की जगह और ये कोस्टल की जगह अंडरपास से उसको कनेक्ट करेंगे, ताकि 300 एकड़ का बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास सेंट्रल पार्क बनाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी कहे, उसका एक बार हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे, क्या है उसमें हम क्या कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे। पहले एक बार इसकी शुरुआत हुई थी, पहले एक बार शुरुआत हुई थी 2000, उसके बाद में 2019 के बाद में भी हुई, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो मैं जब चीफ मिनिस्टर बन गया तब मैं उसे खोल दिया वापस, और मैंने प्रेम से उनको बुलाया
और कहा ये जनता के लिए है, ये पब्लिक पर्पस है, तो आप सहयोग करिए, आपको जो सहयोग चाहिए हम करेंगे। और उन्होंने सब हुआ है, अभी उसको आगे काम शुरू करेंगे, हम बिल्कुल काम शुरू करेंगे। एकनाथ जी, मेरा नाम है रमेश कुंदनमल, मैं बम्बई से हूँ। आपका हिंदी सुन के हमको इतना मज़ा आया, अच्छा इतना मज़ा आया, मैं तो डिक्शनरी लेके आया। हम बोला आप मराठी में बोलोगे, मेरे को डिक्शनरी पढ़ना पड़ेगा, बट आपका हिंदी सुन के मेरे को बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Good evening, Eknath ji. My name is Ashwat Chauta. Firstly, very glad to hear as a lifelong Mumbaikar that the environment is a focus for this government. However, over the last 3 years, the number of BEST buses on the road have reduced, and the square footage of mangroves that we have in our city has also reduced. Whereas other states like Tamil Nadu are aggressively increasing the number of mangroves. Do we have any plans in the development going forward to reverse this? And what are the reasons why this is happening? मैंग्रोव के लिए आपने बताया जो, और बसेस के लिए? Yes. मैंग्रोव के लिए मैं यूडी मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैंने हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि मैंग्रोव्स को बढ़ाने के लिए, मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैंग्रोव्स पार्क बनाने के लिए हमें जिनकी ज़मीन में मैंग्रोव्स है उनको इंसेंटिव देना चाहिए। और यह हम लोग लगभग जल्दी ये पॉलिसी में ला रहे हैं। और मैंग्रोव पार्क, मैंग्रोव प्रोटेक्ट करना ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहा है। और आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि कई जगह पर मैंग्रोव के ऊपर ये लैंड फिलिंग करते लोग, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, इससे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से हम एक पॉलिसी बना रहे हैं मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए। उनको हम इंसेंटिव देंगे तो मैंग्रोव प्रोटेक्ट होगा, मैंग्रोव पार्क होगा, और इस पे हम काम कर रहे हैं। और उनका दूसरा सवाल था कि आप बसेस का बोर ला रहे हैं, बसेस जो आपने कहा, अभी लगभग बेस्ट की बसेस जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, लगभग बड़े पैमाने पर हम ला रहे हैं, और निश्चित रूप से इसकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी। Good afternoon, good evening, sir. My name is Riyad Kundanmal. Chandra ji, when you were the Chief Minister, you had endorsed a game of polo, the heritage sport of polo in Maharashtra. I do believe with the race course now being taken over, there is talk that the game of polo, the heritage sport of polo, may be stopped in the state of Maharashtra. Is there any way we can coexist with your plans? बंद कुछ भी नहीं होगा, सब शुरू रख के हम काम करने वाले हैं। बिल्कुल कोई चीज़ जो शुरू है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, बिल्कुल फिक्र मत करो। I think we should quickly get Amu and then Bachi because we must have gender balance in our questions. My name is Dr. Dhanashri Hardas और मेरे 2 सवाल हैं। एक तो लाडकी बहीण जी योजना आहे त्याच्यासाठी खूप कौतुक, खूप आनंद आणि पाठीवरती थाप ही आपल्या सगळ्यांना मिळतेच आहे आपल्याला कायम। परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या महिला आहेत ज्या त्या योजनेमध्ये बसत नाहीत, उद्योजिका आहेत, कारण मी महाराष्ट्र चेंबर उद्योजिकाची अध्यक्ष आहे महिलाची, तर त्या संदर्भामध्ये माझा प्रश्न आहे। जसं एक स्टार्टअपचा प्रश्न विचारला गेला, सिमिलरली महिला उद्योजकांसाठी काय विशेष योजना आहेत? दुसरं, मी मागे निवृत्तीनाथ महाराज जे त्र्यंबकेश्वरचे तिथं ट्रस्ट बोर्डवरती ट्रस्टी होती, त्यानंतर मी आत्ता सेंट्रल इंडो मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीच्या इथं पण आहे। तर महिला ट्रस्ट बोर्डवरती मॅक्सिमम कधी दिसतील? कारण महिलांना बोलायला एक वाव पाहिजे, त्यांचे विचार आचरणात आणण्यासाठी वी हॅव टू वर्क व्हेरी वेल अँड द ओनली सोल्युशन इज टू सी वुमेन ऑन बोर्ड। तर ह्या गोष्टींसाठी जर असं चांगलं आणि एक माध्यम आणि एक चांगला इकोसिस्टम तयार झाली पाहिजे। तर ह्या संदर्भात आपल्याला आता बघा, लोकल बॉडीमध्ये तर महिला 50% आलेल्या आहेत। बरोबर। आता मोदीजींनी निर्णय घेतला आहे की 33% महिलांना प्राधान्य देणार लोकसभा विधानसभा, बरोबर। आणि आता लाडकी बहीण योजना जी आम्ही सुरू केली त्याचा तर फायदा आपल्या लाडक्या बहिणींना होतो आहे, परंतु तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की रिप्रेझेंटेशन आणि महिला ज्या आहेत आपल्या रिप्रेझेंटेटिव्ह असल्या पाहिजेत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये। आणि इंडस्ट्रीमध्ये पण आमची जी पॉलिसी आहे त्याच्यामध्ये महिलांना प्राधान्य देणारी पॉलिसी आहे। आपल्याला मी सांगतो,
तुम्हाला महिलांना कुठलाही तुम्ही त्यांचे लीडर हे करा ना, लीड करा आणि आपल्या महिलांसाठी जे आपल्याला उद्योग क्षेत्रामध्ये काम करायचं आहे त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला सुविधा पाहिजेत, काही पॉलिसीमध्ये आपल्याला काही चेंजेस करायचे आहेत, तर बिलकुल मी इंडस्ट्री मिनिस्टर बरोबर बोलेन आणि आपण करू की शेवटी महिला आता काही कुठल्या क्षेत्रामध्ये मागे नाही आहेत. आता राष्ट्रपती महिला द्रौपदी मुर्मू मॅडम, आपल्या प्रधानमंत्री महिला होत्या. आता कुठल्या क्षेत्रामध्ये महिला मागे नाही आहेत. आमच्या लाडक्या बहिणी सगळ्यात पुढे आहेत भावांपेक्षा. त्यामुळे तुम्हाला जिथं कुठे प्रॉब्लेम आहे तुम्ही सांगा, त्यांचं तुम्ही नेतृत्व करा, बिलकुल आपल्याला मदत होईल आमच्याकडून. ये बम्बई की इंस्टीट्यूशन है, वन वुमेन इंस्टीट्यूशन, लाइक गेटवे ऑफ इंडिया. अच्छा, ओके. नहीं सुनिए, मैं शिवरी में रहती हूँ. आपने फ्लेमिंगोस की बात की, मैं मान ली, मैं कल जाके देखूंगी कि सचमुच है कि नहीं. मेरे तय से तो है ही नहीं. आप जाएंगे, देखेंगे, उसका फोटो निकाल के लाओ. लेकिन आप मेरे साथ आइए तो आप वो सब रास्ते को आपकी तय मिल जाएगी. नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं जहाँ आई एम श्योर सब लोग हैं वेस्टर्न साइड के, कोस्टल रोड में जाते हैं, सी लिंक में जाते हैं, लेकिन ईस्टर्न साइड इतना निगलेक्ट है कि मैं क्या कहूँ. ऐसे लगता है कि बम्बई में आपकी डबल इंजन की सरकार है, मुझे लगता कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, और वो ट्रिपल इंजन है बिल्डर. ओके, तो सारी बिल्डिंग ही आ रही है, लेकिन देयर इज नो कनेक्टिविटी. अटल सेतु है, मैं नवी मुंबई जा सकती हूँ 15 मिनट में, लेकिन बॉम्बे में मैं नहीं जाती हूँ 1 घंटे तक. तो एक आ रहा है हमारा सिवरी लिंक, एल्फिंस्टन रोड कब से बंद है, अभी शुरू हुआ है. तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके वो कम से कम जरा जल्दी करवाइए. कनेक्टिविटी. हाँ, क्योंकि वी डोंट हैव एनीथिंग. इवन द मेट्रो इज नॉट कमिंग एनीवेयर नियर अस. वो जो आपका फ्रीवे है मेरे घर के सामने जाता है, लेकिन मैं उस पर चढ़ नहीं सकती हूँ क्योंकि एक एंट्रेंस है एंटॉप हिल, दूसरा एंट्रेंस है टाउन में, राइट. तो आप प्लीज़ आप ओपन स्पेसेस की बात की, तो वाटर फ्रंट का इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था. और जब मैंने पहले गडकरी साहब ने लिखा था, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा था, पूरा फुल पेज था कि हाँ इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, लेकिन क्या होगा, सिर्फ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होगा और ये वाटर फ्रंट की बात बिल्कुल पानी में डूब जाएगी. ये बीपीटी वाली जगह की बात कर रहे हैं. हाँ, बीपीटी. बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट. क्यों आपने तो उसके सब लैंड अभी सब हायर कर दिए हैं, तो वो पूरा मरीना सब, तो प्लीज जरा आप ईस्टर्न साइड में आप आके. बिल्कुल आपका कहना सही है. यहाँ सब लोग देख रहे हैं, वहाँ भी देखना चाहिए और वहाँ कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए. जरूर हम लोग उसके बारे में काम करेंगे. बिल्कुल. चलो एक दिन मिलिन जरा याद कराना. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सुधा शर्मा है. आप ही की तरह आम इंसान हूँ. मुझे लगता है काम को लेकर काफ़ी सारे जवाब आपने दे दिए. मेरे पास एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपके लिए. राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, पर कई बार जब आप नीचे रहते हैं, आप किन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं जो आपको हेल्प करता है बाउंस बैक करने के लिए? देखिए, नीचे रहना और ऊपर रहना मैंने पहले ही कहा था. जब मैं चीफ मिनिस्टर था तभी मैं खुद को कॉमन मैन समझता था. जब डीसीएम बन गया तो भी मैं खुद को डेडिकेटेड टू कॉमन मैन समझता हूँ. इसलिए जब जो कोई भी व्यक्ति जब ऐसे पोजीशन में रहता है तो उसको मैं कुछ अलग हूँ ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है. अगर वो सोचता है मैं पोजीशन में हूँ तो नीचे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए. हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम कॉमन मैन के लिए कर रहे हैं, हम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कर रहे हैं. ये हम डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो ये कोई तकलीफ होती नहीं. काम करते रहो, आपका रास्ता आगे आगे बढ़ते रहेगा. थैंक यू सर. गुड इवनिंग. We're working on a project to make Maharashtra the safest for women and children globally. And I feel everyone has to be very much a part of it, and mostly the government. So I want to ask you, is it possible to get fast-track courts for women and children? It's all there on paper and it's all very nice, but nothing is actually being executed.
and they have to be courts that are working. That's the most, and delivering justice in timely fashion. फास्ट ट्रैक Courts. महिलाओं और महिलाओं बच्चों के के लिए जो crime फास्ट होते हैं। होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे राज्य में, मुंबई में आज मुंबई तो सेफ है। आज कोई भी महिला हो, हमारी बहनें हो, खुलकर मुंबई में घूम सकती है, बिल्कुल। Absolutely, we want to make it the safest. That is और ये फास्ट ट्रैक वाली बात जो है, अभी हमारे इन्होंने जो कहा है हाई कोर्ट वाली बात, तो जितने भी ये मामले हैं फास्ट ट्रैक में लेकर उसको जल्दी से अंजाम दे तो लोगों में भरोसा हो जाता है। Absolutely. और जरूर हम करेंगे। So, can we take that forward? बिल्कुल। Before I come to you, ma'am, I have a question from Hitesh Udeshi, who says, what is Mr. Shinde's take on Maratha reservation and how long does he feel this alliance will last? मराठा आरक्षण? मराठा आरक्षण और दूसरा भी सवाल था कि महायुति अलायंस कितनी देर टिकेगा? क्या टिकेगा? ठीक है, मजबूत है, हमारा फेविकल का जोड़ है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारा एजेंडा दूसरा कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट का है। तो मराठा रिजर्वेशन हो या और जो भी काम हो, हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और शेखर जी बिल्कुल हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी है। हमको स्टेट के लिए, स्टेट को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है। तो अभी लोकल बॉडी पोल्स भी आप एक साथ, लोकल बॉडी पोल भी साथ में करेंगे, इलेक्शंस। All of you who watch the print, you know our political editor, DK Singh. DK आओ, थोड़ा शर्माते हैं। Hi everybody. DK सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। दिल्ली में हम मिले थे। DK Singh is the best informed political journalist in the country by a very long distance. और जो आप मेरे से भी देखते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर मैं बोलता हूँ, खास करके कट्टर वगैरह में सारी ट्यूटरिंग इनसे होती है, पहले सारी ट्यूशन इनसे होती है। मैं मजाक करता हूँ कि कोई गलती हो तो ये इनकी जिम्मेवारी, उनकी नहीं है। मैं कई बार गलती कर जाता हूँ। तो डीके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम विविधा है और मैं 1 महीने पहले एक पेट पेरेंट बनी हूँ। एंड आई रियलाइज़ कि आप जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं तो कोई भी डॉग पार्क, डॉग प्लेसेस, कुछ भी हमें नहीं मिलता। एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं, इफ एट ऑल सोच रहे हैं, बिल्कुल आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, प्राणी मित्र जो है, मेरे ख्याल से मुंबई में डॉग पार्क है। छोटे, बहुत छोटे हैं। मेरे भी पास आई ऑल्सो हैव 2 डॉग्स। मैं मुंबई में बिल्कुल थाने में जैसे कई जगह पर हमने किया है, वैसे बीएमसी कमिश्नर को मैं कहूँगा। और ज़रूर सिर्फ ये तो देखो बोलने वाले लोग नहीं हैं, उनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। और जैसे हम नहीं, थाने में नहीं, मुंबई का थाने में कर दिया है। मुंबई में हम जो छोटे हैं उसको बड़ा करेंगे और ये ज़रूरी है, कई लोगों की ये मांग है। क्योंकि ये जो है डॉग हो या जो भी हो, ये हमारे परिवार का एक मेंबर बन जाता है। इतना अटैचमेंट होता है, इतनी अटैचमेंट हो जाती है, तो उसका मुझे बहुत ही एहसास है। और ज़रूर आपके सजेशन फॉर एक्शन बिल्कुल करेंगे। माय नेम इज विलास जोशी। विलास जोशी, जोशी, कोर्टातले जोशी, विलास जोशी। ओके ओके, स्वागत है। मेरा सवाल ऐसा है, बीएमसी के इलेक्शन जो है अभी डिक्लेयर हुए है, मुंबई में सभी लोग थक गए हैं। बराबर आपने जवाब भी दे दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रोड का जो कंडीशंस है वो पैथेटिक हो रहा है। आपने बताया 1.5 बरस में सभी जगह कंक्रीट के रोड हो जाएंगे, बराबर है। डू यू थिंक दैट इज ऑल सबर्ब रोड्स ऑल्सो, ऑल लेन के रोड भी इट विल बी डन बाय कंक्रीट रोड? सब पूरे टोटल 100%। नहीं, वही शीट ऑल्सो 100%। आपको लोग दुआ देंगे कि मुंबई के ये 100% कंक्रीट के रोड करेंगे, वही वह चाहते हैं। बिल्कुल, मेन रोड हो, सबब के हो, सब हो, इंटरनल रोड हो। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक निम्भोरकर है।
मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी में रिक्रूटमेंट हुआ है जनवरी में, पूर्वा चिटनिस जी है, उन्होंने उस पर रिपोर्ट भी किया है कि नए नए लोगों को लाया जा रहा है पार्टी में, तो उसमें से कुछ चेहरे हमें इस बीएमसी इलेक्शन में दिखेंगे क्या? और मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी में अगर कोई आना चाहता है तो आपकी क्या इकोसिस्टम है, आप किस बेसिस पे लोगों को लाना चाहते हैं, उनको कैसे ग्रूम किया जा रहा है पार्टी में? नहीं देखिए, कई लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में जब सरकार चेंज हुई, 2019 में एमयूआई की सरकार थी, 2022 में महायुति की सरकार आ गई, देवेंद्र जी हम लोग साथ में आ गए, बाद में जी दादा आ गए। अभी ये जो 2.5 साल में मेरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो काम हुआ, जो डेवलपमेंट हुई, कुछ वेलफेयर स्कीम्स हो गई, इसको देखते हुए लोग पूरा भरोसा करते हैं कि ये काम करने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, तो वो लोग ज्वाइंट हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। अभी बाकी कोई ऐसी हमारी कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं है कि क्या ग्रूम करना, या वो खुद ही आ जाते हैं और लोगों को पता है कि एकनाथ शिंदे जो बोलता है वही करता है। आज मैं जितने सवाल का जवाब दिया है वो उनको मैं बताऊंगा कि फिर फिर से हम कभी मिलेंगे तो इनमें से कई लोगों के सवालों का जवाब मिल चुका होगा। क्या बात। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन टू ऑडियंस। कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कमिटमेंट। नमस्ते शिंदे जी, मेरा नाम है अजय राव। मैं एक वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाता हूँ। हमारा सबसे बड़ा समस्या है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। तो हम लोग हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पर जो अवेलेबल पूल ऑफ लेबर है, स्किल्ड लेबर है, वहाँ पे वो मिलना बहुत ही बड़ा दिक्कत है। और उसको सॉल्व करने के लिए जब हम बाहर से भी लोग लेके आते हैं तो लोकल वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो बिजनेसेस को ये समस्या का क्या सोल्यूशन है? आपको कुछ भी दिक्कत हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर तो हमारे हो रहे हैं स्किलिंग के लिए, स्किल्ड मैन पावर के लिए, और हम टाटा के साथ भी मैं आपको तो गढ़चिरौली का बात बताऊंगा, इन्वेंशन, इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर किया है। वहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर गढ़चिरौली में किया है, वहाँ टाटा और हमारी सरकार मिलकर कर रही है और 5,000 हर सालाना लोग स्किल्ड हो जाएंगे, मैन पावर मिलेगी। थाना में, कल्याण में किया है, पूना में कर रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये कर रहे हैं। और इसका कारण एक ही है कि जो स्किल्ड मैन पावर मिले और हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है उनको दिक्कत नहीं हो। लेकिन आपको अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत है और बाहर से कुछ स्किल्ड जो लोग आए हैं तो उनको अगर कोई दिक्कत करता है तो उसका सॉल्यूशन मैं करूँगा, उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। बिल्कुल इंडस्ट्री को यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं खुद उसमें ध्यान दूंगा। आप बहुत तसल्ली से, पेशेंस से बात कर रहे हैं। तो बहुत सवाल है जो अब हम अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा एक शैतानी का सवाल पूछूंगा। वो शैतानी का सवाल ये है कि शिवसेना एक थी, आप एक साथ थे, फिर वो टूटी, अब आपकी ऑफिशियली असली लीगली शिवसेना बनी, लेकिन ठाकरे परिवार रह गया। तो उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं कि ठाकरे परिवार पीछे रह गया, शिवसेना अलग बन गई, तो जो रिश्ता था ये जुड़ के रह सकता था, ये आगे जुड़ सकता है? और उसमें साथ साथ एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब फिर से बात कर रहे हैं एक साथ आने की, वो आ सकते हैं और उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? तो दो अलग सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपका और ठाकरे परिवार का रिश्ता जो टूटा, शिवसेना और ठाकरे परिवार का, वो क्या कभी जुड़ सकता है, और या ये टूटना क्या अवॉइडेबल था? और दूसरा ये कि अब अगर वहाँ पे उद्धव और राज साथ आ रहे हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? देखिए, विचारधारा वाली बात है, आइडियोलॉजी। जब बीजेपी और शिवसेना साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे 2019 में, और लोगों ने भी मैंडेट दिया था, तो सभी लोगों का मानना था कि अलायंस की सरकार, गठबंधन की सरकार हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश हुई नहीं।
दूसरे लोगों के साथ, कांग्रेस और ये जो आइडियोलॉजी, अलग आइडियोलॉजी वालों के साथ सरकार बन गई। हमारा यही सोचना था कि लोगों ने अगर मैंडेट दिया है महाराष्ट्र के, तो मैंडेट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उसी बात पर, आइडियोलॉजी वाली बात पर हमने फैसला कर लिया कि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन होना चाहिए। हमने बहुत कोशिश भी की गठबंधन फिर से करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर हमने ये फैसला कर लिया है कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो जाए। फिर हम शिवसेना और बीजेपी की सरकार बना दी और लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। आज 232 सीट मिली है। हमने 80 सीट लड़ी और शिवसेना ने 60 सीट जीत गई उसमें। ये बहुत बड़ी स्ट्राइक रेट है। तो अभी तो ये विचारधारा वाली बात है। अभी हम आइडियोलॉजी के रास्ते पे चल चुके हैं। और दूसरी बात जो है आपने बताई है, ये डेमोक्रेसी में हर एक पार्टी को अलग अलग उसका अधिकार होता है, फ्रीडम है। किसी के साथ कोई भी गठबंधन कर सकता है, अलायंस कर सकता है, आघाड़ी कर सकता है। तो हमें तो हमारे काम पर भरोसा है। हमने जो काम किया है 2.5 साल में, और अभी देवेंद्र जी जो काम कर रहे हैं उस पर हमें भरोसा है। कोई कुछ भी करे, कोई किसी के साथ अलायंस करे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि लोग सब जानते हैं और काम करने वालों को लोग सपोर्ट करते हैं। डेवलपमेंट के पीछे से लोग जाते हैं। लोगों को काम चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। इसलिए हमें कोई बाकी आपको कोई खतरा नहीं लगता? कोई चिंता नहीं है हमें, कोई चिंता नहीं। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। सो सर, वी हैव वन स्मॉल थिंग इन कॉमन इन आवर लाइव्स राइट नाउ, कि हमारे दोनों की लाइफ में देयर इज़ अ 5-year-old। एज अ मदर टू अ 5-year-old, इट्स परहैप्स मेरे लिए इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इन माई लाइफ राइट नाउ। फॉर यू एज अ ग्रैंड पेरेंट टू अ 5-year-old इज द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। आप कैसे टाइम निकालते हैं रुद्रांश के लिए? वो मेरा फ्रेंड है और बहुत अच्छा फ्रेंड। बिगाड़ते भी हो गए आप क्या? उसका कोई मतलब नहीं, मकसद नहीं। वो बिल्कुल बाकी लोगों के जैसा कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप में कुछ मांगना होता है, लेना होता है। उसका तो कुछ भी नहीं ना। जब मैं ज़्यादा मेरा हेक्टिक शेड्यूल होता है तो वो कभी 2-2 दिन 3-3 दिन हम मिलते नहीं। तो कभी लगता है उसको मैं आने वाला हूँ, तो मेरा इंतज़ार करते बैठता वहाँ पर, और इंतज़ार करते बैठ के ऐसा छलांग लगा के मेरे को पकड़ लेता हो। तो उसमें मेरा आधा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और फिर मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। वो बहुत ही मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। उसकी मेरी अच्छी बनती है बिल्कुल। एक बार तो कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो वो आ गया उसमें, बोले चलो चलो बाबा चलो बाबा आ जाओ। अभी क्या उसको बोलूँ मैं? अरे भैया रुक, तू इनोसेंट, और उसको क्या बच्चे हैं। और काफ़ी मुझे उससे जब मौका मिलता है, मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि वो भी बहुत समझदार है। छोटा है, लेकिन वो जब मैं कोस्टल रोड से आ रहा था तो बोले, मुझे पूछा उसने, ये बाबा ये मिट्टी के बड़े बड़े ढेर काय के लिए, इनको साफ क्यों नहीं करते? बोले ये पानी, बोलता है ये ब्लैक वाटर क्यों है, ब्लू वाटर क्यों नहीं है? ऐसा पूछता है मुझे। मैंने कहा क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना था, इसलिए ये ब्लैक वाटर है। लेकिन हमने जैसे चीफ मिनिस्टर बना, भी उसको ये सब डिटेल में मैं बताया नहीं, लेकिन मैंने कहा कि इसको ज़रूर सुधारूंगा। तो जैसे मैं कंक्रीट के रोड बनाने का निर्णय लिया, वैसे मुंबई में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 7 जगह पे बन रहे, अगले 1.5-2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे और समुद्र में जाने वाला पूरा पानी ब्लू वाटर बन जाएगा, पूरी तरह ट्रीटेड वाटर जाएगा समुद्र में। That's very good. I forgot to tell. I should have told you earlier that you were going to meet a really earthy politician, and he's very earthy because he started as a worker, not just as a worker of his party at the real beginners level, but also he started life as a rickshaw driver. ग्रास रूट से मैं आया हूँ, इसलिए मैं
समझता हूँ कि जब हम बोलते हैं तो उसको पूरा भी करना चाहिए, और मैं कभी कभी एक बार कमिटमेंट करता हूँ तो उसको पूरा करना मेरा फ़र्ज है, जिम्मेदारी, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट से आया हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, कोई फिल्म में एक डायलॉग है, जब मैं कमिटमेंट करता हूँ, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर खुद की भी नहीं सुनता मैं, उसका पूरा करता हूँ। और अपनी लाइफ शिंदे जी ने रिक्शा चालक से शुरू की थी। आप देखिए भारत की जो डेमोक्रेसी है उसकी भी ये स्ट्रेंथ है कि एनीबडी कैन कम फ्रॉम एनीवेयर एंड राइज टू द टॉप। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की घटना, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ये सब हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, वो भी आज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके टीम का भी, शाइना पात्रुटकर सर, डैनियल, फॉर गिविंग अस सो मच टाइम विथ यू एंड टू आवर लवली ऑडियंस। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ऑडियंस को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत भी करता हूँ और बहुत ही खुशी हुई सबको मिलकर। एक और बात, ये शायना सब लोग ऐसे हैं जैसे रायल है, जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं इनके माता पिता को जानता था, क्योंकि मेरी वही जनरेशन है। तो शायना के फादर बहुत लाइवली, बहुत सीखा उनसे हमने। और मिलिंद के फादर, उसके हमारे परिवार में एक थोड़ा सा उसके बारे में स्टोरी है कि जब भी मुरली भाई के साथ मैं कहीं ऐसे मंच पे बैठता था तो मैं कहता था, आई कैन नॉट फिगर आउट मुरली देवरा बिकॉज माई बॉस कॉल्स हिम अंकल, क्योंकि विवेक गोयनका उसको अंकल बोलते थे, एंड माई सन कॉल्स हिम मुरली। क्योंकि वो हमारे घर कभी आते थे तो हमारा लड़का छोटा था, ऐसे 4-5 साल का था, तो उसके लिए छोटे मिनिएचर एयरप्लेन या कार का मॉडल लेके आते थे। तो वो कहता मुरली हैज़ कम। तो मैंने कहा मेरा बॉस कहता है अंकल और मेरा बेटा कहता है मुरली। सो ही वॉज दैट कैरेक्टर हु ऑल जनरेशंस एंड like Nana Chudasama also. Nana, I also knew her uncle who was running Air India in New York, and I spent many afternoons walking together. दोनों शिवसेना में अभी। मुझे मालूम है, आपने सबको लपेट लिया है। नहीं, अभी आपको मैं बताऊंगा। मिलिंद यहाँ पर है, मेंबर ऑफ राज्यसभा है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब डेलीगेशन गया था अलग अलग देशों पर, श्रीकांत, मेरा जो बेटा है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, वो भी आप जानते हैं, तो वो भी एक डेलीगेशन का लीड कर रहा था, और मिलिंद भी एक डेलीगेशन में था। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे शिवसेना के दोनों एमपीज को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया, और इन्होंने काम भी अच्छा करके दिखाया। जहाँ गए वो पूरे कंट्रीज़ ने हमें सपोर्ट किया, हमारे देश को, भारत को। ये भी जब मौका मिलता है तो अच्छा काम करते हैं। गर्व की बात है आपकी पार्टी के। अभी उससे वो भी हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। मोदी जी तो सब मुमकिन है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और सबको अष्टमी की बधाई, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विजयदशमी की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। The Print of the Cuff. Presenting partner Kotak Private. Experience partner The Quorum. Beverage partner Art House Collective Glassware. Associate partner Teamology.